ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट के क्लास 12 सिलेबस में ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 16, 17 और 18 ग्रुप है। इन द क्लास 11 सिलेबस वी हैव डिस्कस बोरॉन फैमिली एंड द कार्बन फैमिली। ठीक है, एंड इन दिस ईयर इन द क्लास 12 विल डिस्कस नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड द न्यूबल गैसेस। Trends are same. जैसे हम trends we have discussed in the we had discussed earlier in the boron family and in the carbon family, same as in the p block element also trends वैसे ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो today we will discuss some of the physical chemical properties and the atomic properties of the p block element. तो फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ अ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बेसिकली nitrogen is represented by N, phosphorus P, arsenic by As, antimony by Sb and the bismuth by Bi. Okay, so starting is a trend of some of the atomic, physical and the chemical properties of the group. This is the starting topic of this chapter. So first one is the electronic configuration. We know that the general electronic configuration of the nitrogen family is NH2NP3, and another is most important, the nitrogen families is also called nictogen. Why this is called, this is a Greek word and this means suffocating, suffocation. ठीक है, क्योंकि gases are very suffocating, the substances are very suffocating, that's why it's called nitrogen family, and another name of this family is a nitrogen family. Okay, or group 15 elements, because lying in group 15 general electronic configuration, if you discuss general electronic configuration is NH2NP3. It means in the valence shell total 5 electron present in a valence shell, 2 electron in s orbital and the 3 electron present in p orbital. Okay, so next is atomic number. So first is the nitrogen. What is the atomic number? The atomic number is 7 and the configuration is 2s2 2p3. Helium is there. Second we have phosphorus, arsenic. Phosphorus is a 15, atomic number 3s2, atomic number 15, and the configuration is the 3s2 3p3. Arsenic 4 3d10 4s2 4p3. Antimony 4d10 5s2 5p3. And last is the bismuth is a 4f14 5d10 6s2 and 6p3. In this especially हमने अभी कहा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NH2NP3, बिकॉज जस्ट यू सी द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी हम देख रहे हैं 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 एंड 6s2 6p3. इट मीन्स the last जो electronic configuration the valence shell is NH2NP3. That's why general electronic configuration is NH2NP3. Clear? And second most important, अगर हम इसको गौर करें तो in the arsenic the electron enter in the 3d orbital, in the antimony 4d, and in the bismuth is a 4f and 5d. This will affect the physical properties of the elements, है ना. We'll discuss later some of the chemical properties also affected by the this electrons which are present in the 3d orbital and the 4f orbitals. ठीक है, तो वो जिसको हम लोग बात करेंगे एक एक करके. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हाँ, सेकेंड वन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यू हैव टू लर्न द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप वाइज, टॉप टू बॉटम. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. वी हैव डिस्कस अर्लियर. दे आर कॉल्ड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार. ठीक है, यू कैन लर्न ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार. इसके फॉर्म में हम उसको याद कर सकते हैं क्योंकि नेपाल एन, पाकिस्तान पी, ऑस्ट्रेलिया ए एस, सब एस बी एंड द बीमार इज बी आई. तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार. सेकेंड वन, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, अगर आपको याद नहीं है वैसे तो आपको लर्न करना ही करना है. बट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, देखिए हमको याद रखना है कि जब भी हम करें तो इसके एटॉमिक नंबर में यहाँ पे हम ऐड कर दें कितना, 8. तो 7 + 8 कितना होता है, 15. यहाँ ऐड करेंगे हम कितना, 18. तो विल गेट द 33. यहाँ हम ऐड करेंगे फिर अगेन 18, विल गेट द 51, एंड देन वी विल ऐड 32, विल गेट द 83. ओके,
हमको हमेशा याद रखना है कि जब हम सेकंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं तो यू ऐड 8, 18 एंड देन 32, तो आपको नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो ये ऐड करना है इन द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस एलिमेंट। तो आप ऐड करते जाइए, यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑल्सो इफ़ यू, अगर आपको लर्न नहीं है तो, अदरवाइज तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है, जो ट्रेंड्स में हम बात करते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, हमको पता है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज इन साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। हमने जब भी एस ब्लॉक पढ़ा या इनिशियल इन टॉपिक NSL में हम हमेशा पढ़ते कि बिकॉज इनिशियल इंट्रोड्यूस, ठीक है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है हमेशा, न्यू शेल प्रिंसिपल एनर्जी शेल इंट्रोड्यूस और एडेड अ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी शेल इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट, है ना। इसके कारण हम कहते हैं कि रेडियाई इंक्रीज करता है। बट इफ़ यू कंसीडर जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, विल गेट द सम सिंपल वेरिएशंस, ठीक है। हम तो जनरल वेरिएशन क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजेज इन साइज, इट मीन साइज, ऑर्डर ऑफ द साइज इज बिस्मथ इज लार्जर देन एंटीमनी, एंटीमनी इज आर्सेनिक, आर्सेनिक इज more than phosphorus and phosphorus is more than nitrogen. This is the general order, okay. But if you see the covalent radii, अगर हम यहाँ इसको गौर से देखें तो नाइट्रोजन फास्फोरस में डिफरेंसेस काफ़ी बड़ा है, 70 to 110। बट एज यू मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी, द जो कोवेलेंट रेडियस गैप इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने उस चीज़ को किया, देर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ए कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम द नाइट्रोजन फॉस्फोरस, बहुत कंसिडरेबली इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये अगर इस फैक्टर को हम समझे तो दिस इज़ नॉट ओनली ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी, हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज कर रहा है, दिस नॉट ओनली फॉर द प्रिंसिपल एनर्जी शेल और एडिशन ऑफ द न्यू एनर्जी शेल, ठीक है। अनदर फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ शिल्डिंग इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कोवेलेंट रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई को यहाँ पे जो इफेक्ट कर रहा है कोवेलेंट रेडियाई को, इज अ शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एज यू फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इनर शेल इज एस ऑर्बिटल इन द पी ऑर्बिटल एंड द एस एंड पी ऑर्बिटल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सडनली इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। बट आर्सेनिक टू एंटीमनी एंड एंटीमनी टू बिस्मिथ, हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि देयर स्मॉल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियाई, व्हाई, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द D and F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, इन द हैवियर एलिमेंट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस which reduces the effect of the addition of new energy shell to some extent, it means वो क्या कर रहा है, हमारा घटा दे रहा है, और हम कह रहे हैं इसी के कारण ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F ऑर्बिटल, जो जो कोवेलेंट रेडिया गैप है इन बिटवीन एंटीमनी एंड बिस्मथ स्पेशली इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हमने देखा था कि द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द इन द एंटीमनी 4d10, ठीक है, एंड इन द बिस्मथ 4f14 एंड 5d10, तो वहाँ पे 4f14 एंड F एंड D ऑर्बिटल के शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा, दैट्स वाई द जो स्ट्रक्चर होगा, जो सॉरी साइज होगा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, और तो हमें इसलिए वहाँ पे पिकोमीटर में जो कोवेलेंट रेडिया गैप है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यह इसका रीज़न है। आर्सेनिक स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडिया, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D and F ऑर्बिटल इन द हैवियर एलिमेंट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई में भी इफ यू सी दैट 171, 212, 222 increases initially and that here is also increases, small difference is there, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, बट इज़ नॉट देयर, क्योंकि ये तीनों जो है वो यहाँ पे N3 माइनस, P3 माइनस और AS3 माइनस का रेडियाई है, नेगेटिव आयन का है, और ये जो रेडियाई है वो 3+ चार्ज का है, ठीक है, कैटायन का, तो वी नो डैट कैटायन हैविंग अ स्मॉल साइज देन द एनायंस, दैट्स व्हाई वी यहाँ पे हमको आयनिक रेडियम में ऐसा वेरिएशन दिखता है, बट वो जनरल वेरिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वी नो डैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
और एक जनरल ट्रेंड हमको पता है कि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जनरली जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो जब भी हम आयनेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं तो हम दो ऑर्डर में पढ़ते हैं, आयनेशन एंथैल्पी कंपैरिजन बिटवीन 15th एंड 14th ग्रुप, एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी एज यू मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस मीन्स, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन increases because the force of attraction between the outermost electron and the nucleus decreases। तो वो कहते हैं कि आराम से रिमूव हो सकता है। तो ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, ग्रुप 14 द ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज वेरी मच ग्रेटर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट। इन लास्ट ईयर हमने जब पढ़ा तो हमने कहा कि अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इसी अभी देख ले तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2s2 2p3, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और 2s2 2p3 इट मीन्स it is a half filled atomic orbital, p orbital having a 3 electron and half filled orbital, and we know that half filled and a full filled atomic orbital is highly stable, and but in the carbon if you see the carbon, ठीक है, atomic number is a 6, configuration 2s2 2p2, it means only 2 electron present in a p orbital। तो इसीलिए वो कहते हैं कि द हाफ फिल स्ट्रॉन्ग हाफ फिल स्टेबल ऑर्बिटल के कारण जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका आयनेशन एंथैल्पी जो कार्बन फैमिली है उससे यानी ग्रुप 14 से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास क्लियरली है। तो बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड स्मॉल साइज, आयनेशन एंथैल्पी हाई। नेक्स्ट इज आयनेशन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन, एक पार्ट हो रहा है आयनेशन एंथैल्पी का सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी। तो वी नो दैट सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि ऑलवेज थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन वन, और उसका रीज़न हमको पता है वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टाइटली विद द न्यूक्लियस एंड दे नीड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल, तो दे नीड मोर एनर्जी, तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑलवेज मोर देन सेकंड and second is more than 1। clear? next is the electronegativity। तो जनरली बहुत जनरल ट्रेंड है, इन जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, बट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको बहुत रेगुलर ट्रेंड तो नहीं मिलता। नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, phosphorus 2.1, arsenic 2, and antimony bismuth having a same electronegativity 1.9 and 1.9। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई ग्रुप 15 एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ग्रुप 14 एलिमेंट। क्यों होता है? बिकॉज साइज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट इज स्मॉल, ठीक है, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, सो दे हैव ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बट इन ग्रुप में कोई खास वेरिएशन हमें यहाँ दिखता नहीं है। नेक्स्ट आई है फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स। तो फर्स्ट वन इज द एटॉमिसिटी। तो वी नो दैट इज अ पॉलीएटॉमिक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। Nitrogen exists in the diatomic gas, it is a diatomic gas, other are the polyatomic solid P4, AS4, they exist in form P4 और वहाँ सिंगल बॉन्ड है and they are the solid। ठीक है, सेकेंड वन इज अ मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक में वी नो दैट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, arsenic antimony is a metal halide, and the bismuth only one as a metal। क्यों है रहा? बिकॉज वी नो दैट एज यू डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी decreases, or as the आयनेशन एंथैल्पी decreases tendency to lose electron increases, so that's why we can say that वहाँ पे जो है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, arsenic antimony is a metal halide, and the bismuth is a metal। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जनरली बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस टू एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, एक जनरल ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीजेस
बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू यहाँ तक, ठीक है, बिस्मथ। ठीक है, अब बात आ रही कि मेल्टिंग पॉइंट, तो हम यहाँ देख सक रहे हैं, देखो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन। बॉइलिंग पॉइंट 77, 555, 888, 1860 एंड 1837, तो इंक्रीजेस रेगुलरली। और हमने कुछ स्पेशली यहाँ बनाया, स्टार का मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, डी वाइट फास्फोरस, एंड एफ इज द सब्लिमेशन टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट देखो बड़ा एकदम सडनली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक आके बढ़ा ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंड देन एंटीमनी एंड द बिस्मथ, क्या हो गया ये, डिक्रीज कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अब फिर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको आना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगेन। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट में अब हम करें नाइट्रोजन से आर्सेनिक में आ रहा है, इट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डी टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। ठीक है, वो होता क्या है कि जैसे जैसे साइज यहाँ पर बढ़ रहा है ना, बट लेकिन हम कह रहे हैं कि साइज तो आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ डिक्रीज कर रहा है। और वो कह रहा है कि ऐसे क्यों डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम ध्यान देखें तो हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग की बातें कर रहे हैं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग इन अवेलेबल इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बट antimony and bismuth due to poor shielding effect and due to inert pair effect, ठीक है, कैन फॉर्म ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना, एंटीमनी बिस्मथ क्या है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म इंस्टेड ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो हमने यहाँ क्या कहा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डी ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे सॉरी इन द एंटीमनी क्या फिलअप हो रहा है, डी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या फर्क हो रहा था, 4f एंड 5d। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहे हैं, एफ और डी ऑर्बिटल यहाँ पर है, डी ऑर्बिटल, इसके कारण जो हो रहा है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट है, और उसके कारण जो एस ऑर्बिटल के लूज करने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, यानी NH2 कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ओनली NP3 पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग। उसके कारण जो एंटीमनी एंड बिस्मथ हैविंग ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसके कारण क्या होता है, जो अट्रैक्शन है अमंग देयर एटम्स डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो और दूसरा साइज बड़ा है, वो जो बाकी जो वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आना चाहिए अच्छा, लेकिन क्योंकि बॉन्डिंग कम हो रही है इसलिए वहाँ कहते हैं कि दे आर हैविंग अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रहेगा इसके कारण आ रहा द एंटीमनी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर्सेनिक स्पेशली कैन फॉर्म, हमारे पास आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, but the arsenic, antimony and bismuth, sorry not arsenic, antimony and bismuth can form 3 covalent bond instead of 5 covalent bond. Clear? Okay, next is the allotropy. Simple, except nitrogen, ठीक है, जो बाकी हमारे पास है वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, बिस्मथ इज ऑल्सो नॉट शोइंग द एलोट्रॉपी। फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म है, मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म मेनली इज अ वाइट, रेड एंड अ ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी मेनली आर येलो एंड ग्रे एलोट्रोपिक फॉर्म। ओके, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस दे आर शोइंग द एलोट्रोपिक फॉर्म, नाइट्रोजन एंड द बिस्मथ जनरली नॉट शोइंग द एलोट्रोपिक फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में आता है वो होता ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हम किसको पढ़ते हैं सबसे पहले, केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्टली विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम एक पहले तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बातें कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम उसका देखते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें तो देखो हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5। ठीक है, 5 + 3 बिकम 8, इट मीन्स दे नीड 3 इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग, है ना।
अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेते तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेते देन उनके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आ जाएगी, -3। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, बॉन्ड। तो इसीलिए वहाँ कहते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एज यू गेन 3 इलेक्ट्रॉन वो अचीव कर लेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ तक ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP3 है। क्या है, NH2 NP3। अगर ओनली p ऑर्बिटल, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3+3। ठीक। और इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन यानी S एंड P के पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे कोवेलेंट बॉन्डिंग में देन द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम +5। तो एक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, -3 +3 and +5। दिस इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो दिस एलिमेंट कैन शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके कारण, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल, +5 if all the electron of S and the p orbital participate in a bonding they show +5 oxidation state। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 +3 एंड द +5। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यह लर्न मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जैसे से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है वैसे वैसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या रहा, ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड द मेटेलिक कैरेक्टर, in fact last member of this group bismuth hardly form a compound in -3 oxidation state। why, because ये क्या है हमारे पास, it is a metal, bismuth is a metal, तो उसकी कोई टेंडेंसी यहाँ पे नहीं होगी to gain 3 electrons। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन। अब हमारे एक ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम बात करें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर शो करनी है तो ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन हैड टू बी प्रोमोट, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, NH2 NP3। ठीक है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, only 3 half filled orbital, 3 half filled orbital means these 3 orbital can participate in bonding, so +3 oxidation state। but for showing +5 oxidation state the one electron must be promote from S orbital to where, in the d orbital। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, कि प्रमोशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो वो कह रहे कि प्रमोशन इज द मस्ट। लेकिन अब अगर हम बात करें कि प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, लेकिन अब अगर हम देखें नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, 2s2 and 2p3 एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर इज नो d ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि 2d ऑर्बिटल तो होता नहीं, तो d ऑर्बिटल एब्सेंट इन नाइट्रोजन, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रमोट फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल। बट उसके अगर हम आगे चलते हैं, किसके अंदर चले, फास्फोरस में जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैन प्रमोट, तो न्यू जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास यहाँ आएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन वेयर d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए थे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देंगे हमको, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देंगे, and they can show the +5 oxidation state। So due to absence of d orbital nitrogen cannot form cannot show +5 oxidation state। तो nitrogen doesn't form compound in the +5 oxidation state with halogen as nitrogen does not have d orbital from the other bonds। बहुत कॉमन क्वेश्चन है अगर आप देखें कि
PCl5 is known but NCl5 is not known. Why? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि वाई किसी भी हायर स्टेट में कि प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कैन नॉट शो बट द अदर एलिमेंट शो, या कुछ भी एक कंपाउंड बना के हमको दे दिया कि PF5 इज पॉसिबल बट NF5 इज नॉट पॉसिबल, PCl5 इज पॉसिबल बट NF5 is not possible. Give the reason. Do you have to know the reason? What is the reason? Because the absence of d orbital. ठीक है. Next is the stability of plus 5 oxidation state. Next important, the stability of plus 5 oxidation decreases down the group. ठीक है. Only well known characterized compound of bismuth is the PIF5. हम कहते हैं कि बिस्मथ का BIF5 मिलता है, उसके अलावा तो मिलता ही नहीं हमको, और वो भी स्टेबल नहीं है। जनरली क्या है, वो स्टेबल नहीं है। तो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे घट रही। अभी हमने पढ़ा कि क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वी कैन, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्योंकि भाई प्लस 5 की घटेगी तो 3 की बढ़ेगी। क्यों हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबको याद है क्या होता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जो NH2 NP3, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F एंड D ऑर्बिटल्स इन द बिस्मथ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बहुत हाई हो जाता है। तो उस हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण दिस NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टाइटली विद द न्यूक्लियस। क्लियर? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, किसके कारण? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सडनली एंड स्ट्रांगली, एंड वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल है इन द बिस्मथ बॉन्डेड टाइटली विथ, ठीक है, न्यूक्लियस। So this one is not available, or the electron present in S orbital is unable to promote in the D orbital. तो इसके कारण से only 3 electrons of the P orbital participating in bonding। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्लस 5 इज़ वेरी रेयर और लेस स्टेबल। ठीक है, ठीक है। वेल नोन कंपाउंड हमारे पास क्या है? बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड है, ठीक है। तो वो एक या फिर हम कह सकते हैं कि दे नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म अ P5 बॉन्ड, और उतनी एनर्जी उसको अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पे हमको वो कंपाउंड नहीं मिलता। क्लियर है? अब जनरली जो होता है कि इन द प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली और एसेंशियली द कंपाउंड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। जो एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है इन फॉर्म बोथ आयनिक एंड द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि BIF3 SBF3 NCl3 PCl3 दोनों बना रहे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो हो रहा है वो हमारा, एक और बड़ी बात है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इज ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। वहाँ पे भी अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर भी देख लें तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये मिलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी मिलेगा एंड देन बिस्मथ, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो भी क्या हो रहा है, इन जो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ तक, ठीक है। और थर्ड वन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो नाइट्रोजन होता है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एक हमारे पास स्पेशल कंपाउंड है जिसमें हमें एक वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। क्या मिलती है हमको? वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। नाइट्रोजन कैन शो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वेरिएशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वेरिएशन को देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। इफ़ यू सी देख NH3, in the NH3 the oxidation state of nitrogen is -3. If you take NH2, here is the oxidation state of nitrogen is -2. If you take NH2OH, okay, the oxidation state of nitrogen is -1. In the N2 the oxidation state becomes 0, okay।
any other compound, if you see a nitrogen oxide N2O, here will be a +1. NO is a +2, oxidation state of the nitrogen. Yeah. Another example, if +2 के बाद if you see plus N2O3, then the oxidation state of nitrogen is +3. Nitrogen dioxide is a +4, or dimer of the nitrogen dioxide N2O4 having a +4 oxidation state, N2O5 +5 oxidation state. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 जो वेरिएशन मिलता है हमको, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण नाइट्रोजन क्या है ना, शो द वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक याद रखने की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हमने यहाँ पे कहा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो हम कह रहे हैं कि द ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म +1 to +4। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन शो का +1 +2 +4, तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +4 टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। क्यों हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन नाइट्रोजन में? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना, यानी एक ही एलिमेंट में हो जाए। इट मीन्स अगर एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लोअर ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम जब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन कैन शो -3 से +5, तो अगर वो +1 में है तो कैन कन्वर्ट इनटू +5 और कैन कन्वर्ट इनटू -3 और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इट मीन्स गेट डिस्प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने, यानी स्पेशली नाइट्रोजन की बात करें या हम फास्फोरस की बातें करें, तो इन द एसिडिक सॉल्यूशन तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन की +1 से +4 के बीच में जितनी भी है कैन शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इफ़ यू वांट बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जो वो हमारे को वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन मिलता है। सिमिलरली अगर हम देखें फास्फोरस के अंदर देखें तो फास्फोरस कैन ऑल्सो शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे भी वो है वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे फॉस्फीन है PH3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे फास्फोरस की। ठीक है, H3PO4 में अगर हम चले जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या बन जाएगी, P+5। तो अब फिर वही है कि अगर कोई एलिमेंट है तो वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कंपटीशन एग्जाम में 12th में बहुत पूछा जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड को देखो 4H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज +3। ठीक है, ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म 3H3PO4, okay, and plus PH3 is form compound. In H3PO4 the oxidation state become +5, here become -3। इट मीन्स यहाँ +3 से +5 गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड हियर यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो फॉस्फोरस गैस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ। तो H3PO3 से क्या बन गया, H3PO4, एंड H3PO3 से क्या बन गया, फॉस्फीन। तो अंडरगो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो ये एक हमारे पास है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखें तो इसको डिटेल में हमेशा याद रखना चाहिए। काफ़ी वेरिएशन मिलता है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 पहला केस। दूसरा केस है कि वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सेकेंड इज वाई द स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यहीं राइज हो जाता है, आपको यू हैव टू नो दैट कि वहाँ पे ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। अनदर क्वेश्चन कि वाई नाइट्रोजन जनरली नॉट शोइंग द, है ना, +5 नहीं बना रहा, वहाँ क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, तो वो नहीं बना पा रहा है। जहाँ पे दे भी रहा तो ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, आपको +5 नहीं दिख रहा वहाँ पे। ठीक है,
तो क्यों नहीं करा? बिकॉज द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर। फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत पॉसिबल है नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो कैन इंक्रीज कैन रिड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई द नाइट्रोजन कैन शो द वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रीज़न इज देयर। ये आपसे कभी पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन, हम आपको बना के दे दे कुछ, कोई भी मतलब एग्जाम में या कहीं पे भी कंपटीशन में या 12th में आप देखिए तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। इफ़ यू हैव अ PCl3 एंड अ PCl5 विच वन इज मोर स्टेबल? तो ऑब्वियसली PCl3 इज मोर स्टेबल देन PCl5। या फिर हम करें कि PCl3 PCl5 कंपेयर करने से अच्छा अगर हम चले बिस्मथ में, बिस्मथ ट्राई फ्लोराइड इज देयर, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड इज देयर, BiF3 and BiF5 which one is more stable? Obviously BiF3 is more stable than BiF5. क्यों? Due to inner pair effect. Bismuth have a more tendency to show +3 oxidation state. तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में बना सकते हैं। या हमने एंटीमनी ले लिया और बिस्मथ ले लिया, हमने लिखा कि हमारे पास क्या है, SbF3 है, वी हैव SbF3 और वी हैव अ BiF3। ठीक है। अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल इन SbF3 एंड BiF3? तो इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन इजिली जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। तो ये एक हमारे पास है जो क्वेश्चन है जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास है नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 सिंस ओनली 4 S and 3 p orbital 1s and 3 p orbitals are available for bonding। ठीक है। नाइट्रोजन कोवेलेंसी कितनी होती है? ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। ठीक है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी हो सकती है? 4 होती। ठीक है ना। क्यों हो रही है? बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। ठीक है। और वहाँ पे भी वो कह रहा है कि वो जो अपनी डोनेट है नाइट्रोजन जो है ना, तो अपनी एक वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता वहाँ पे 4 से, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन नहीं बनाता है। NF5 इज नॉट फॉर्म, NCl5 इज नॉट फॉर्म। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द फॉस्फोरस एंड ऑल अदर एलिमेंट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, so they can utilize their d orbitals, and when they can utilize their orbitals, so they can easily show the covalency of 5 or 6 in the PCl5 oxidation state of phosphorus 5, in arsenic pentafluoride oxidation state of arsenic is 5। ठीक है। अगर वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखे PF6 माइनस, हियर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज 6 सॉरी 5, तो 5 PF6 इज माइनस इज 5, तो वो कह रहे हैं कि वो 5 शो कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ठीक है। कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया। शब्द ध्यान रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी। फॉस्फोरस शो द +4 हमने पहले बात कर ली। इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट कैन अंडरगो द डिस्प्रोपोर्शन